नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नेशन पॉड टॉक सीजन 2 में। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं उन खास शख्सियतों से जो जिंदगी के हर क्षेत्र से आते हैं, फिल्म, खेल, संगीत, नृत्य, बिजनेस और अन्य रचनात्मक दुनियाओं से। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक्टर, मॉडल और फिटनेस उत्साही जितेश खटवानी। इन्होंने कई वेब सीरीज में शानदार अभिनय किया है और हारा एक दीवाने की दीवानियत में इनका किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया। आपने इन्हें कई विज्ञापनों में भी देखा होगा। Hosting this episode is our incredible host Suresh Rajan Iyer. Okay. Hello, viewers. This is Suresh Rajan Iyer from C Nation for Talk. As usual, we bring on a lot of celeb persons from various walks of life, like film, sports, singing, dancing, Mr. India, Mrs. India, and we talk about their challenges, their success, the triumphs, the victories, paths, the way traveled, and we go deep into that and then bring out the best out of them in our talk. So this time we are lucky to have with us one of the multifaceted personality of the entertainment world, like fitness. Then he is the influencer, and then he's the Aura Mr. India, and a couple of series, teleseries he has worked in, and films. So the actor in Jitesh Khatwani. So welcome Jitesh ji on board. Swagat hai. Thank you. Thank you so much for having me on your show. And it feels really good when somebody appreciates your work and somebody talks about it. So thank you so very much once again, sir, for having me here. We welcome you from the bottom of our heart, as well as personal, as well as our channels. So the very first, like in cricket, they say the first ball should be a bouncer. So I'll put a bouncer to you that Right. you're into multifaceted, Yes. Field of work you have done. When did you thought Right, that sir. acting would be my main forte or passion? So earlier acting wasn't my passion, to be very honest. Yeah. It started out in 2004. Okay. I used to work out a lot in the gym. So I randomly come across a thing which was known as Gladrax Mr. India. So I just had a look in one of the forms which was published in the magazine of Gladrax. Hmm. And I took that magazine and I thought maybe I can give it a try. So that was the time when I gave it a try. And for the first year in 2004 or 2005, I wasn't selected. 2006 was the first time when I got shortlisted from North India, Okay. including Delhi. So that was the time when it really boosted me up. Hmm. And it made me feel that I can really work hard on myself and achieve whatever I feel like. Right. So that was the thing. Then 2007, I was back to my hometown because my mom passed away. Then I thought maybe that was not a thing for me. 2021, again, I started. In between my workout and everything, fitness was the primary objective. I thought, see, whatever you do in your life, fitness is the center of thing. I mean, if you do any kind of work, it's not about acting, modeling. If you, in your personal life as well, if you are concerned about your fitness, अगर आपको लगता है कि you want to be successful in any of the fields, so what comes the first thing is either fitness Yeah. or your mindset, and the mindset only can be made up through your fitness. Being it a pro or being it a normal fitness, do any kind of fitness, whatever is essential. Yeah. So that was the time 2021 again, I started up with one of the Mr. India competition held in Delhi. Then again, Mr. India International, where people participating from all over the world came into the competition, and I was the first one within that. Fantastic. So that really boosted me up. Yeah, that really boosted me up for that, sir. And while I was looking for work in modeling, there was a random audition which came up to me. Okay. And that is something really interesting. That is really something interesting. Yeah. That was an audition for this Disney Hotstar, a web series named The Night Manager, starring Mr. Anil Kapoor, Aditya Roy Kapoor. Okay. Sorry. So I gave the audition for that. Hmm. For one of the two auditions, I didn't get selected. I thought maybe, see, I haven't learned that much. So maybe that is the reason I might not be selected.
But one fine day, another day, asked me for another audition because the looks and the fitness really matched the character which they were looking for. Okay. It was an army man character. So I appeared for that I appeared for that audition again, and luckily I got selected. And it was somewhere around 5 in the evening, 5 to 5:30. It was raining heavily, and I got a call from Mumbai. See that you have been shortlisted and finalized for a project named Night Manager, starring Anil Kapoor, Aditya Roy Kapoor, and you have to be there by tomorrow morning, Oh, 6 a.m. So I didn't get the tickets in my hand. I didn't have anything in my hand. They thought I was in Bombay that time because couple of days back I was there in Bombay. okay. But that time I wasn't there in Bombay. I was in Lucknow. Oh, So I generally asked my this travel agent to book a ticket for me. I thought maybe like let's see if I get it or not. There were only two flights, and the last flight was at 10 o'clock. nice. So in that case also in 10 o'clock, and I got the news. I was confirmed by around 5:36 in the evening. Oh, So I have only few hours, like 3 to 4 hours with me. I had already one backpack for me, like for the couple of clothes, so that I can travel for about a week. So I generally pack it in as a backup for me. So I just took that suitcase, and in between the metro, I was like traveling towards the airport. That agent confirmed me with a ticket, which was for 10 o'clock in the evening. oh, I said, "ठीक है," and I can only I can only say that it was only by the grace of God. There was only one ticket left in that flight, and that was of me who getting that ticket. So that was Destiny. destiny for me, and I really played the very good role in Night Manager Part Two, Mhm. and I enjoyed working with them, and it was really a great experience for that. So that was the time when I realized that acting also can work for me, and Fantastic. started working on acting. And here I am after doing two movies and a couple of web series. Fantastic. Your journey looks like you are an accidental actor. Some have it's, something it's all, all yeah, It's trying to be an it's actor. all Yeah, that's right. It's always God's grace that I have been in the city now, Bombay, and I'm enjoying every bit of it. interesting. You must have done after that, a couple of teleseries and web series and Jamna Par. Web series, yes, Gemna Part 2 I did. It was a great experience working with Prashant sir as a director. Yeah. And the role which I got in Jamna Part was the CEO of this coaching institute. Okay. And I enjoyed playing that role. It was a small role, but yes, it was an important role it was a role, in fact, this coaching institute around which this whole story goes around. Okay. So it was lovely playing that character. And after that, I did a couple of TVCs a lot, more over TVCs, and I did a Sikandar movie as well with Salman Khan. I was playing next to Satyajit sir, who was the negative role, who had a negative role in that movie. So it was lovely learning lessons from him, and I had a great experience out there. Couple of years you are working in the acting arena, and what was your experience with Harshvardhan Rani? I think एक दीवानी की दीवानियत. Yeah. So very pleasant memories. This is an amazing journey for me, sir. And I must say, you have done a lot of research for me, and whatever That's work our I have job. done. That's our job to find out what are the ins and outs of the person we are talking to. Yeah, I mean, I'm really impressed by that. So the latest movie which was done by me was Ek Diwani Ki Diwaniyat for with Harshvardhan Rane, and Milad Zaveri was his sir, and who is the director of this movie. The casting was done by Parag Mehta, Aram Nagar. He has an office. So this also one fine day I got an audition for this. I was taking it lightly, and then I thought maybe it was a role of a news anchor. Okay. So I thought, why not playing something different? Right. The best part in acting is that you get an opportunity to play various roles which you have never played in life. Right. So that is the bit which excites you to work more and more. So the briefing which was given to me before I could give a self-test for that was, have you seen Arnab Goswami? Just look at him
We want a similar character like that. What the director, what the casting Very, guy, very informed electrifying me. and always energetic. Yeah. Yes. So that was it. This was the brief given to me. So for about half an hour or about 45 minutes, I was like going through all the shows which he has like done on the TV. I was just figuring it out, like his body language, the way he uses his pen, or maybe the way he uses his hands, and to what extent the points which he suppose that what are the key words in that statement he pushes it, and This the is way how he punches it. Yes. That was the thing which I was looking for. For about half an hour to 45 minutes, I was just going through that. And later on, around 40 to 45 self-test, after making 40 to 45 Oh, self-tests, okay. I finally got a call that they really like the audition. The first audition which I made was by saying, Arnab, hi, my name is Arnab, and welcome to my show, and something like that. So they said, don't call the name, just use the word, any character name. I said, yes, of course. I mean, so that was the time when I used somebody else's character's name. But the role which I played, I was more inspired from him. So the seriousness on his face, the way he looks, the way he presents himself. So that was a thing which really inspired me to be very serious, to be very focused. If you're asking something, just to make the person who is sitting next to you or standing next to you, make him a little nervous in whatever words, or trap him in words. So that is a thing The which authority generally news you have reporter, to show the yes, commanding. commanding. Yeah. आपको दिखाना पड़ता So है that was I am the boss. right. So yes, that was it, which I like imbibed from him, and I thought maybe this can really work out for me. Right. तो उसके बाद मैंने फिर audition बनाया, and really they really liked it. So once I was on the floor of एक दीवाने की दीवानी, the day of the shoot was first, and I had the second scene of the movie. Okay. So the first day, second scene. So lot of takes to be in a presentable way. But when I saw the movie and after the dubbing and everything, and after the movie got released on 21st of October, um, I was overwhelmed with the response what people gave it to me, and they really liked it, and I really loved it. My family, everybody in my home, my dad, everybody like really loved the way I presented, and I really loved myself after watching that movie. Yeah, I could really justify that character what I was playing, and I was really good to that character. What I personally feel, and I hope everybody who watches that movie feel the same. Definitely, because once you like the work you are doing with full Right. enjoyment and fun, people will appreciate. Yes. You like the first step. Yes. Whatever you do, not only Right. like, but whatever you do, you must be a trainer, you must be a influencer, you must be what you are doing. Mhm. If you are doing with pleasure and happiness, that is seen outside. It is said. Right. So this is one story of दीवाने की दीवानियत. लेकिन आपने बहुत सारे बहुत सारे काम किए हैं, हाफ सीए हैं, फिर उसके बाद डू यू वांट अ पार्टनर, so all different roles you are doing. So now we must be sailing through the acting profession. Have you sidelined the other activities of your life, or you will be focusing on acting? Sir, right now I'm only concerned about acting. I have left apart everything. The only focus is on acting, and I want to be a good actor. Because I personally feel that if a focus is very clear on either of the things, or like whatever you want to do in life, people earlier when I started up, people said that this is your passion. I mean, you're just fulfilling your passion. I said, it might be a passion for you. I feel it is a career for them. I mean, passion, including career, makes something really majestic. I mean, it creates some magic. So that is it. I'm blessed that I can pursue my career with my passions. So that is what I really love about myself. So you have converted. So that is I'm blessed by. You have converted your passion into my career. Yes. Passion को प्रोफेशन बना दिया. तो इसका ये तो अर्थ नहीं होता कि आपने जो फिटनेस ट्रेनर हैं या फिर आप पैशन का जो आपने किए हैं तो वो लोग आपसे वंचित हो जाए, ऐसा तो नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर.
I am always available for everything. Fitness was my priority initial days. Abhi bhi hai. I go like it's been like somewhere around 19 to 20 years. I've been into fitness. So a lot of done training and I've learned a lot. मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं मतलब अगर ट्रेनिंग किसी को दी जाए तो I can really well train somebody into anything. Transformations is very easy. It's like it goes on as you want it. It's just that you need to be focused and जो आप कर रहे हो वो एक सही तरीके से करो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे एक्टिंग हो चाहे फिटनेस हो, whatsoever. जैसे भी एक्टिंग में मैंने किया, थोड़ा बहुत किया, पर हाँ फिटनेस मेरा शौक था, तो फिटनेस इज रिलेटेड टू एक्टिंग, मॉडलिंग. इट रियली हेल्प्स इन एवरीथिंग, every aspects of life. One has to be fit to do anything. Yes, ये जस्ट जोश होना चाहिए कि मुझे ये करना है और अच्छे से करना है. Enthusiasm कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए. Do your राइट सर, whatever you are doing, enthusiasm पूरा होना चाहिए तो उसके अंदर काम अच्छा हो. ये कहीं में 100% सर. तो ये फिटनेस का जो ये आपको मतलब ये बेसिकली यू आर अ फिटनेस ट्रेनर फर्स्ट टू बिगिन विद. यस ये कहाँ से मिला? राइट सर. विरासत में मिला या आपने अपने आप ने उसको खोज के इसको बड़े इसको करते हैं? एज इन लाइक फिटनेस ट्रेनर स्टार्टिंग में सर इनिशियल कैसे स्टार्ट किया मैंने? यस यस. सर इनिशियल में सर इनिशियल तो मेरा ऐसा रहा था कि जब मैं क्लास 12th में था, हाँ क्लास 12th में था, मैं घर से बोल के जाता था कि मैं जिम जा रहा हूँ और मैं खाने पीने चला जाता था. आई नेवर यूज्ड टू ट्रेन. 5-10 मिनट ट्रेनिंग की, 5 मिनट ट्रेनिंग की, आई यूज्ड टू हेट फिटनेस. कि भाई रोज सी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चेस्ट बैक और जो शोल्डर्स एंड लेग्स वर्कआउट, इट्स गोना बी द सेम. आई मीन आप बोर हो जाओगे. हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आप वही चीजें रिपीट कर रहे हो. समथिंग इज नेवर एक्साइटिंग. बट जब मैंने स्टार्ट किया, देन आई लुक्ड एट लाइक गुड ट्रेनर्स आउटसाइड. बाहर के ट्रेनर्स जो हैं, चाहे इंडिया के ट्रेनर्स हैं या इंडिया के बॉडी बिल्डर्स हैं, पावर लिफ्टर्स जो हैं, इनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा देखो व्हाट इज द की थिंग इन एवरीथिंग. कुछ भी बनना है, अगर फिट दिखोगे, पर्सनालिटी अच्छी होगी, तो इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प. आज नहीं तो कल हेल्प करेगा. पर्सनालिटी इज द थिंग व्हिच बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग. तो उसको सही करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल देन? योर लुक्स एज वेल एज योर फिटनेस. कि आप कहीं भी दौड़ जाओ, कहीं भी भाग जाओ, कहीं भी कूद जाओ, एट द सेम टाइम बॉडी अच्छी होनी चाहिए. हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत हेल्दी और ओवरवेट या बहुत बल्की होनी चाहिए. सब बल्की का भी एक ट्रेंड था सम टाइम बैक. अब हो गया है अब नाउ इट इज लाइक मस्कुलर और बिल्कुल एक टोन्ड अप फिजिक हो गया है. सो अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं, बट यही एक चीज है जो हमेशा सस्टेन करेगी. अगर मस्कुलर आप नॉर्मल है, फिटनेस है, कुछ भी है, तो दैट इज द थिंग व्हिच आई लव्ड इट, एंड दैट इज द थिंग व्हिच डजंट इन्वॉल्व एनी ऑफ द एक्सटर्नल थिंग्स टू बी पुट अप इनटू बॉडी. आप अगर नॉर्मल प्रोटीन भी ले रहे हैं, बेसिक चीजें भी ले रहे हैं, सो यू कैन कैरी आउट द थिंग्स. बट अगर आपको बहुत हैवी बॉडी बिल्डर्स बनना है, तो बहुत सारी चीजें, एक्सटर्नल चीजें लगती हैं. ऑल्दो हाँ वो भी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें सब आदमी यूज करे तब कॉम्पिटिशन हो सर. व्हेन यू हैव दैट गोल कि आप वर्ल्ड के लिए खेल रहे हो या इंडिया के लिए खेल रहे हो ऑन अ फिटनेस लेवल, देन यू कैन यूज दैट. बट अगर जब आपका गोल एक क्लियर है कि आपको अच्छी फिटनेस रखनी है, कि आप कोई भी एक्टिविटी करो, यू शुडंट गेट टायर्ड इजीली, और बिल्कुल मतलब फिट हो, यू ईटिंग हेल्दी, यू आर वर्किंग हेल्दी ऑन योरसेल्फ, and you're looking good, your physique is looking good, whatever you are wearing, जो भी आप कपड़े पहन रहे हो, आप उसमें अच्छे दिख रहे हैं एंड प्रेजेंटेबल दिख रहे हो. सो वो बेसिक नीड्स सबके लिए होनी चाहिए. मुझे लगता है कि दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबडी. So that was the thing which made me get into this field. Earlier I started with bodybuilding क्योंकि उस समय गोल कुछ नहीं था. मैं heavy बॉडी बहुत बना लिया, वो भी बना के देख लिया. फिर 1 digit फैट में भी चला गया, समवेयर अराउंड 6% फैट, बॉडी फैट पे भी मैं गया, 7% बॉडी फैट पे गया. बट यू कांट सस्टेन दैट बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट यू कैन सस्टेन इज जो सर एक हेल्दी बॉडी, आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छे से दिख रहे हो, आप बीमार नहीं पड़ रहे हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इन एंड आउट आप दोनों हेल्दी एंड एक्टिव हो.
तो दैट इज व्हाट इज एसेंशियल। तो फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करने लगा तो फिर मुझे लगने लगा कि अगर एक बॉडी पार्ट है, सपोज दैट चेस्ट है या कोई भी बॉडी पार्ट है, एक तो बेसिक वेरिएशंस है, उसके बाद कैसे वेरिएशंस आते हैं, फिर चेंजेस लाने होते हैं, कभी मस्कुलर करना है, कभी हैवी करना है बॉडी, कभी वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, उसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो दैट वाज द टाइम व्हिच एक्साइटेड मी कि भाई ये सब भी सीखना बहुत जरूरी है। कि ट्रांसफॉर्मेशन आज देखिए, सपोज दैट अभी आज मुझे समझ में आ गया, सी आई हैव लर्नड ऑल दोस थिंग्स, नाउ आई अंडरस्टैंड, सपोज दैट इफ आई वांट टू गेन अ वेट ऑफ लाइक 95 100 kg, it's a very easy thing for me. I can gain it in like 2 months, 2-3 months के अंदर आराम से I can get that target done. And at the same time, अगर मुझे सेम इसी बॉडी वेट पे खेलना है 80-85 या 75 पे आना है या 80 पे आना है, so that is also easy for me. क्योंकि अब मेरा वर्क ऐसा है कि if I'm playing different characters, I need to work on each character कि भाई अगर ये character आ, दोनों आप right. So I should not be bound with one thing. जी. So now I feel very happy कि मैंने fitness को भी priority दी and I learned it a lot from it. that is giving you now dividends, you know. You started 20 years back and उसका जो असर अभी दिख रहा है, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में या उस वक्त जो पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त उस पर जो अपसेट हो गए थे, नाराज हो गए थे या दूर भाग गए थे, आज जो है इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा है। इसके साथ आप Thank you, sir. फैशन मॉडल भी थे आप, ये उसी दौरान हुआ था या ये कौन सा थी चीज भाई? क्योंकि आपने कोई चीज छोड़ी नहीं, फैशन में गए या फिटनेस Sir, में कौन सी फैशन मॉडल, तो इसके बारे fashion में model? Okay, हाँ। fashion model. The fashion model जब मैं दिल्ली में था after doing these competition, तो मैंने देखा कि why don't I approach designers for the show? जब मैंने देखा दिल्ली टाइम्स फैशन वीक होने लगा, तो मैंने देखा लैक्मे फैशन वीक होने लगा, सो मैंने सोचा कि मेरा एक उस समय ये दिमाग में आया, तब एक्टिंग स्टार्ट नहीं की थी ज्यादा, थोड़ा सा इनिशियली लेवल था, तो मैंने सोचा कि फैशन में भी कुछ किया जाए। तो देन आई मेट कपल ऑफ डिजाइनर्स लाइक रवि रजौरिया जी, सिद्धार्थ टाइटलर, जो आज के इंडिया के जाने माने बहुत बड़े डिजाइनर्स हैं, जिनके कपड़े आप ज्यादातर सेलिब्रिटीज को पहनते हुए देखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने और भी डिजाइनर्स थे जो मैंने उस पीरियड में उनके साथ काम किया, लर्न किया, देखा। फिर झुकाव था, लेकिन प्रॉब्लमली एक चीज थी जो मैंने वहां पे फर्क देखा, मेरा एक्टिंग की तरफ झुकाव तब थोड़ा सा ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि whenever you go into modeling and all that kind of a stuff, the age bracket is somewhere around 17, 18, 19, 20 to 25. 25 is a time, is a last time जिसके बाद अगर आपको मॉडलिंग मिलेगी, मतलब अच्छा डिजाइनर्स आपको लेंगे, लेकिन the amount of designer is going to be pretty less. अब suppose that I was playing as a character model for some designers. Okay. अर्लियर आपने देखा होगा करीबन 4 साल पहले या 5 साल पहले, द थिंग वाज कि जो भी डिजाइनर्स थे वो यंग लैड्स को ही लेते थे, रीजन बिहाइंड कि दे शुड लुक लैंकी एंड यू नो वो चार्म आता है फेस में यंग मॉडल्स को। उसमें कपड़े अब अच्छे जैसे जैसे करेक्ट एंड जैसे जैसे एज अगर बढ़ गई तो उनको वो मिल नहीं रहा था, बिकॉज हर कपड़े किसी पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए ही बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर एक यंग लॉट का मॉडल, अगर एक डिजाइनर है जिसके कपड़े थोड़ा से लाइक स्टाइलिश एंड यू नो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी हो, तो जनरली आपको 35 प्लस वाले लोग कम पहनते हुए दिखेंगे, वो लोग थोड़े से सोबर, क्लासी, एलिगेंट में दिखेंगे, एंड ट्रेंडी वाले जो होंगे थोड़े से ज्यादा ट्रेंडी होंगे, द यंगस्टर्स आर गोना वेयर दैट, सो दैट इज अ टाइम। हाँ, तो फिर जब ये आने लगा, फिर आई सॉ कि सम ऑफ द लाइक सीनियर मॉडल्स जो थे समवेयर अराउंड माय एज, दे वर आल्सो डूइंग मॉडलिंग, तो कैरेक्टर मॉडल थे पर काम कम थे, काम उतना ज्यादा नहीं था, मतलब इफ दे आर 10 to 12, अगर मान के चले 10 से 15 डिजाइनर हो, तो एक ही डिजाइनर होगा तो बहुत बड़ी बात होगी कि एक ही या 2 डिजाइनर मिल जाए आपको जो आपको कैरेक्टर मॉडल की तरह ले। आज भी इंडिया में आप देखेंगे ज्यादातर जो भी मॉडल्स हैं दैट कवर द यंग क्राउड रादर देन दे आर कवरिंग द मिडिल एज और अबव एज क्राउड्स, older people. राइट, older people in the modeling industry.
सो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई कैन डू। ये तो मैं कर ही रहा हूँ, या ब्रांड्स तो मैंने पकड़ लिए हैं, सो व्हाट आई डू, आई स्टिक टू द ब्रांड्स। देन आई केम टू बॉम्बे, देन आई स्टार्टेड अप। उस समय तक बॉम्बे नहीं था मैं, ऑन एंड ऑफ था, लेकिन पर्टिकुलरली आई वाज नॉट लिविंग इन बॉम्बे। फिर उसके बाद देन आई स्टेप्ड इनटू बॉम्बे। फिर मैंने एक्टिंग वैक्टिंग किया, इधर अच्छा किया, फिर अच्छा मिलने लगा। फिर मैंने देखा कि फैशन के जैसे आते हैं, जैसे कोई ब्रांड है, फेब इंडिया का मैंने किया, एयर इंडिया का मैंने किया, प्रिंट शूटिंग के रहे, कल्कि का ब्रांड, जो कल्कि ब्रांड है बहुत अच्छा ब्रांड है, इनके लिए मैंने काम किया। सो दीज वर द ब्रांड्स which came up to me कि भाई we want a model like you. So that was the time when I thought कि ये fashion is not only limited in RAM, it is also the one which you use it for stills and videos and for the digital media. Right. So apart from only the RAM shows, I was aware of it, but I never stepped into it. फिर उसके बाद मैंने कैंपेन शूट्स किए इनके लिए, फिर मैंने क्या कहते हैं फोलियोज में इनके लिए किया। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टेप्ड इनटू फैशन। फिर मैंने पहले रैम किया, उसके बाद फैशन किया, उसके बाद फिल्म्स एंड वेब सीरीज। सो दिस इज द वे विद द थिंग्स आर गोइंग ऑन। This is what is making you a complete media personality. आपने फिटनेस किए, fashion किए, फिल्म किए, एक्टिंग किए, अब आगे क्या है? आगे सर मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, मेरा थिंकिंग बहुत सिंपल है। आज का भी मैं ऑडिशन बनाता हूँ, पता नहीं कितने बना लिए होंगे आज तक। अगर ऑडिशन की बात की जाए तो मैंने 800-900 तो बना ही लिए फॉर एवरीथिंग, टीवी सीरीज, मूवीज, वेब सीरीज, सबके लिए बनाता हूँ। बट व्हाट आई फील इज, बना के छोड़ दो, आगे ऊपर वाला बैठा है, वो आपके लिए हर एक चीज करेगा। मैं उतना सोचता भी नहीं हूँ कि मैंने वो कल क्या करना है। मुझे ये पता है कि मुझे आज टास्क क्या मिला है, मुझे बस उतना ही करना है। उसमें सिलेक्ट होना है, नहीं होना है, दैट इज अप टू हिम। व्हाट माय पॉइंट इज कि जो कर रहा हूँ, अगर आपके साथ जैसे आज बात कर रहा हूँ, तो आई वांट टू गिव माय 100% टू यू, कि जितना अच्छे से कर सको, या व्हाटएवर आउटपुट यू कैन गेट आउट फ्रॉम मी, दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब ये सब जो तो कर रहे हैं, बस बेसिकली आप इसके अलावा भी कुछ और कर रहे हैं या सिर्फ यही कर रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ यही। अच्छा, एक ही शो चल रहा है इस समय मेरा अपने ऊपर ध्यान। मतलब आपके पास तो मतलब पूरा बैंक होगा ऑडिशन का फाइल बना के रखे होंगे। 800-900 तो बोल दिया आपने। हाँ, ऑडी राइट सर। अब बनाते बनाते मजा भी आता है, बिकॉज आई फील एक्साइटिंग। बिकॉज अगर आप टीवीसी का भी ऑडिशन बना रहे हैं, या वेब सीरीज का भी बना रहे हैं, या फिल्म के लिए भी कोई, आज मैंने जैसे एक वेब सीरीज, माइक्रो वेब सीरीज के लिए भी बनाया मॉर्निंग में, और एक टीवीसी के लिए भी बनाया। तो इट इज लाइक, मुझे इसलिए बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज सी बहुत रेयर चांसेस होती हैं कि दैट यू रिपीट अ कैरेक्टर। एवरी टाइम आई एम प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर। एंड किसी को देख के, अब जैसे कहीं आओ, किसी को देख के लर्न करने को जो मिलता है, एंड वो क्या कर सकता है, अपने आप को जानना। इस समय आई फील एक्टर इज द ओनली थिंग विच मेक्स यू फील कि आप एक्चुअल में क्या हो, अपने आप को जान। सर आप लोग रहते हैं इस दुनिया में, बातें करते हैं, मिलते हैं सब लोगों से, पर भूल जाते हैं अपने आप को डिस्कवर करना। एंड मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड टू बी एन एक्टर और अ मॉडल, जो भी कहिए आप। आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। रीजन बिहाइंड, मुझे अपने आप को जानने को बहुत मिलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरी क्या कैपेबिलिटीज है। एट द सेम टाइम मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई भी कैरेक्टर मिल गया, उसको मैं अच्छी तरह से कैसे दिखा सकूं या प्रेजेंट कर सकूं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपने थैंक यू। ऑरा मिस्टर इंडिया ये भी जीता, क्या है वो, उसके बारे में सर ये एक संक्षेप में? सर ये एक राइट इट्स विद अ कंपटीशन इन दिल्ली, और पीयूष पीयूष जी इसके को फाउंडर है, एंड ही इज अ डायरेक्टर ऑफ दिस मॉडलिंग दिस कंपटीशन। ये भी एक मिस्टर इंडिया का पार्ट है सर, और इट वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 2021 के आसपास, 2021 के आसपास आई है। तो यहाँ पे भी बहुत यंग मॉडल्स थे। आई थिंक I and there was another guy who was about the same age what I was. So it was fun being a part of this Mr. India competition ही था ये। और ये एक इंडिविजुअल मिस्टर इंडिया कंपटीशन थे, जैसे एक होता है, अगर आप देखते हैं जैसे ग्लैडलैक्स था या ग्राफिक मिस्टर इंडिया था, दीज आर
हाई लेवल कॉम्पिटिशन, बट ये भी कॉम्पिटिशन है, बट ये इनका इसमें भी कंटेस्टेंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बट इट स्टार्टेड मोर ओवर व्हेन ड्यूरिंग द कोविड टाइम। जब आया तो उन्होंने सोचा कि व्हाई डोंट वी कम अप विद समथिंग जो ऑनलाइन से हो जाए। सो ऑनलाइन वाज अ सेशन फॉर ग्रूमिंग एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन इस ग्रूमिंग से लेके देन दे कॉल्ड अस, एंड उसके बाद सब चीजें सही हुई। देन फिर जो वहाँ पे क्या कहते हैं जो भी पार्टिसिपेंट जैसे भी कंपटीशन चला या टैलेंट राउंड चले, so I was a part of it, so I really enjoyed it, and luckily by God's grace title भी जीता। तो many congratulations for that. You know, you are a multifaceted player. You know, facet वो feather in the cap होता है ना, वो मिस्टर इंडिया भी आपके एक feather में। You know, now बस भगवान you said you are not thinking of the future and all, but you are, you know, mainly with the auditions and all those things. So राइट। अभी 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 जो है 2025, अगर सपोज करिए कि हम 2030 या 2035 में जीतेश जी को कहाँ देखना चाहें? सर अगर मैं ये जवाब, हालांकि पता नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बट अगर मैं सोचता हूँ अपने आप को, सोचता हूँ कि 2025 से लेके 2030 के बीच में मैं कहाँ पे अपने आप को देखता हूँ। जी, बॉम्बे का ऐसा कोई बिलबोर्ड नहीं बचा होगा जहाँ पे मेरी, या कोई एड नहीं बचा होगा वेयर आई डोंट फाइंड माई सेल्फ पर्सनली। ऑन एवरी ब्रांड देयर इज ओनली वन नेम, जितेश खटवानी, एंड ये अगर भगवान चाहेगा तो जरूर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस a very good actor, a very good actor, and a very characteristic actor, in fact, like Pankaj Tripathi, जो Oh. हर तरीके के रोल कर सकता है, एंड सोबर से लेके क्रिमिनल से लेके कोई भी आप रोल पकड़ लीजिए, कोई भी आप कैरेक्टर पकड़ लीजिए, ही प्लेज इट लाइक एनीथिंग। उनके अंदर सबसे अच्छी आदत जो मैंने देखी कि वो मुंह से कम बोलते हैं, अपनी आंखों से ज्यादा डिलीवर करते हैं अपने डायलॉग्स। So that is the thing which I want to learn from him and be at a point where everybody in this city, in the city where I was born, जो मेरा होम टाउन है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, should be proud of me, and वो लोग ये कहें कि यार इसने मेहनत की एंड ये वहां पहुंचा है, एंड हम भी इनकी तरफ पहुंचेंगे। That will be the only gift I want by God. बस कि and I think सर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सीरियसली कोई भी चीज नहीं मुश्किल है। आप फोकस बस एक चीज पे रखो, आप मल्टीपल चीज पे फोकस रखोगे, इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच द टारगेट। एक चीज पे फोकस रखो अपने आप करो 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 करो। व्हाट आई फील, ऊपर वाला देने के लिए बैठा हुआ है, पूरा बैग बना के बैठा हुआ है, बस आप करो तो। सो नाइस, वेरी वेल सेड। एक्चुअली ये सवाल था, लेकिन मैं ये पूछने से पहले आपने जवाब दे दिया कि आपके आइडल इज पंकज त्रिपाठी। तो सो नाइस ऑफ यू। बट वन मोर थिंग, अभी आपकी फैन फॉलोइंग है, तो फैन के लिए कोई मैसेज एक दो लाइन में अगर कहना चाहेंगे, who are want to follow you? यस, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, तीन चीजें इनफैक्ट। पहली चीज, खुद पे भरोसा करो, खुद पे डाउट कभी मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम फिर कुछ कर ही सकते हो, और कुछ नहीं है। सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। सेकेंडली, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, कहीं मत जाओ। माता पिता जो भी हैं, आप अच्छे हैं आपके लिए, बुरे हैं, वो दिल से आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। बस उनके पैर पकड़ लो, देखो कितनी जल्दी पहुंचोगे। और तीसरी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लाई है, एक्सपेक्टेशन 0 रखो और भगवान पे 100% भरोसा रखो। ना किस्मत बदलता है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। Fantastic. बहुत बड़ी बात आपने, लेकिन सिर्फ 3 इसमें सेंटेंस में कह दिया, बहुत अच्छा लगा। नहीं, अगर कोई मेरा ये बिलीव है सर, यंगस्टर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है या किसी भी प्रोफेशन में, तो उनके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इम्बाइब होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि आप दे सकते हैं? सबसे सर, जो भी कोई अगर इस फील्ड में आना चाहता है, एक्टिंग में आना चाहता है, तो धीरे धीरे करके, जैसे कोई भी बुक्स पढ़े, कोई भी सिंपल, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई
आप शेक्सपियर पढ़ रहे हो या वो पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, हाई फाई पढ़ रहे हो, जिसमें दिल लगे एक पैराग्राफ रोज का पकड़ लो, उस पैराग्राफ को पढ़ो, उस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है वो समझो, ताकि तुम्हारा माइंड एक्टिव होना स्टार्ट कर जाए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक सबसे अच्छी चीज कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल। जितने ज्यादा तुम लोगों से मिलोगे, जितने लोगों को देखोगे, किसी का वॉक करने का तरीका, किसी का बात करने का तरीका, किसी का समझने का तरीका, somebody आर टॉकेटिव, कोई बिल्कुल शांत होता है, उनकी तरह उनके एक्सप्रेशन ये पकड़ोगे तो एक्टिंग रियली इट विल रियली हेल्प इन एक्टिंग। रही बात मॉडलिंग की अगर आपकी उतनी एज है 18 से लेकर 25 या 27 तक है, आप मॉडलिंग करो, अच्छे से मॉडलिंग करो, रैम शोज करो, अच्छे से रैम शो, अच्छे कॉम्पिटिशंस पकड़ो, जेन्युइन लोगों से मिलो। हालांकि बहुत आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको शॉर्टकट दिखाएंगे, चाहे मॉडलिंग, चाहे एक्टिंग, चाहे कुछ भी, वेदर इट इज अ मेल, फीमेल और एनीथिंग। सिर्फ अपने पर भरोसा रखो, सी व्हाट इज गुड फॉर यू, ऑलवेज बिलीव इन गॉड। बस अगर ये दिमाग में हर कोई कुछ भी करने से पहले भगवान पे भरोसा रखोगे ना, तो खुद ही गलत नहीं जाओगे और काम अपने आप आ जाएगा। जब आप किसी डायरेक्शन में जाओगे तो अपने आप काम आपको मिलेगा। आप एक स्टेप रखो, भगवान 1000 स्टेप आपकी तरफ रखता है, पकड़ाता है कि ये लो तुम्हारे लिए ये है। फैंटास्टिक। तो बस उसी पे आप ध्यान रखो। बहुत बड़ी बात कहे आपने। और नितेश जी, आपने समय दिया, उस समय के लिए आप शुक्रगुजार हैं। और मैं मेरी तरफ से और मेरी चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, देश का नाम, आपका नाम, आपके फैमिली का नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। Thank you so much for having me. It is really a pleasure meeting you. Thank you. And the team. And thank you so very much. And it was a wonderful time spent with you. Thank you.